A scathing letter has been written by former Odisha MLA Mohammad Mokyum to Sonia Gandhi, expressing deep anguish over the Congress party's organizational decline and leadership failures. Mokyum warns that the party is losing its legacy not because of external opponents but due to its decisions taken within. He calls the situation unprecedented, demoralizing for workers, and urges urgent corrective steps and renewed leadership. He flags the inaccessibility of Rahul Gandhi and says that he hasn't been able to meet Rahul since the past 3 years. Mokyum says that the Congress is slipping away due to internal decisions, not external defeats. He warns of 6 consecutive losses in Odisha and historic national setbacks, reflecting deep organizational disconnect. He also highlighted severe demoralization of grassroots workers who feel unseen, unheard, and directionless. He flags a growing disconnect with India's youth. In fact, let us take you through that letter that has been written by this ex-MLA who is there from Odisha. And on your screens right now, you will have this letter, and in fact, we will highlight some of the important parts for you on regarding this letter. So, obviously, he has written this to Sonia Gandhi, and he has stated that he is writing this with a heart that is filled with both pain and hope. And he has also stated how this is his legacy. He is not a recent member of the Congress. His connection, his family to his connection to the Congress and his family's connection to the Congress is a legacy. It's a sacred inheritance. His great grandfather was a freedom fighter who actually stood alongside prominent leaders of the Congress during India's struggle for independence. So he has not written this letter lightheartedly. He said that he is writing this with pain and hope, and he is stating that his family is a legacy when it comes to its relations with the Congress. And he has also stated that his daughter Mrs. Sofia Firdaus has now been elected as MLA from the same constituency of Barabati Cuttack in 2024, and his victory was historic, not merely in numbers but also in symbolic significance, because he is pointing it out that this was, even though aggressive campaigns were led by the highest offices of the opposing parties, and still his daughter actually won the elections over there. Next, when we look at his concerns, the first concern that he is raising is that a century-old legacy is slipping away, not through defeat by others but through decisions taken within our own walls. So, you can understand how this is very important, because he is stating that this is not because of external defeat, this is because of decisions that have been taken by the Congress. And in fact, he has mentioned that the recent outcomes in Bihar, where the Congress party was reduced to single digits, Delhi, Haryana, Maharashtra, Kashmir, where they reflect a deeper organizational disconnect, a series of wrong decisions, misguided leadership choices, and continued concentration of responsibility in the wrong hands have weakened the party from within. So, this is a very important line that he is stating. He is stating that there is misguided leadership, there is concentration of power in the wrong hands, and there is an organizational disconnect, and that is why the Congress party has been losing back to back. That is why it is suffering from these setbacks. And he is also stating that workers at every booth, block, district and state are demoralized and emotionally broken. So, this is very important, that all the workers, the grassroots level workers, are feeling demoralized, they feel emotionally broken, and they feel punished for being loyal to the Congress party. So, obviously, they are asking questions about the leadership quality that they are currently facing. And he is also saying that there are silent cries of lakhs of dedicated Congress workers who actually feel abandoned by the very organization that they have served with devotion and sacrifice. Now, he has also mentioned that in fact there is a leadership
crisis in Odisha, and he has stated that leaders like Sarath Patnaik and Bhakta Charan Das were appointed as OPCC president, even though they have lost their consecutive Lok Sabha elections. So for Sarath Patnaik, he has pointed out that he lost 6 consecutive Lok Sabha elections. He also witnessed the lowest vote share in their history of just 13%. Then he goes on to state that Bhakta Charan Das was also appointed as the OPCC president, and he too has lost 3 consecutive elections, and yet he was in fact elected over here in Odisha. So in fact, before I go across to other parts of the letter, Mohammed Mokyum, former Congress MLA who has actually written this letter, is joining us on the broadcast. Sir, we were just accessing that letter that you have written to Srimati Sonia Gandhi. You have expressed deep anguish, and you have stated that there is some misguided leadership, there is concentration of power in the wrong hands. Please take us through what the Congress workers are actually feeling on the ground and what made you write this open letter, sir. नहीं, देखिए, ये बिल्कुल जो हम लिखे हैं वो कड़वा सच है। हम सोनिया जी जिनके त्याग से कांग्रेस पार्टी रिवाइव की थी, जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था कांग्रेस पार्टी के लिए, अभी ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी आफ्टर दैट लोकसभा इलेक्शन इन ऑल 5 स्टेट्स हम लोग मिजरेबली हार चुके हैं, और संख्या जो कम चुकी है, मतलब दिल्ली में कंसेक्यूटिव 3 इलेक्शन में हम लोग खाता भी खोल नहीं पाए, ऑल 3 आर 0-0-0। जस्ट रिसेंट बिहार इलेक्शन में वी गॉट ओनली 6 नंबर ऑफ सीट आउट ऑफ 243 सीट्स। बीइंग ए member of the Congress party, my family is with Congress since independence, so कहीं ना कहीं हमें बहुत तकलीफ दे रही है कि पार्टी में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो जिम्मेदार हैं पार्टी में, जो लोग पार्टी को मतलब चला रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट होती है, गैप हो जाती है पार्टी एंड वर्कर्स के बीच में, लीडर्स एंड वर्कर्स के बीच में। जो मेरी अनुभव हुई, हम इसलिए सोनिया जी को ये लेटर लिखे हैं कि देखिए, पार्टी अपोजिशन रोल प्ले कर रहा है। जब पार्टी अपोजिशन में होता है तो इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पार्टी को रिवाइव करने के लिए। एंड द एआईसीसी प्रेसिडेंट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, इज द लीडर ऑफ राज्यसभा, हम उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट एज एआईसीसी प्रेसिडेंट उनकी विजिबिलिटी ज्यादा नहीं रहती है, उनका मेहनत, उनका ग्राउंड में जो होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। एंड द सेकेंड लाइन लीडर्स ऑल्सो, जैसे हमने बोला है कि जो पैन इंडिया फिगर्स हैं, जैसे सेकेंड लाइन लीडर्स में सचिन पायलट जी हैं, डीके शिव कुमार जी हैं, जो प्रूफ किए हैं, रेवंत रेड्डी जी हैं, आपके जो केरल से भी हैं, तो जो लोग पहले से प्रूफ कर चुके हैं, एंड प्रियंका गांधी इज देयर। तो एक यंग ब्रिगेड को जिम्मेदारी देके, क्योंकि राहुल जी जब कांग्रेस इलेक्शन हार चुकी थी तब राहुल जी सोमोटो इस्तीफा दिया था, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, और जिम्मेदारी लेकर उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिए थे। तो उसके बाद खड़गे जी प्रेसिडेंट हुए काफी साल से। एंड आज के टाइम में हमारी जो 5 स्टेट की रिजल्ट है इंडिया में, ये सूचना देती है कि हमें एक यंग ब्रिगेड की जरूरत है, जिसकी छवि पैन इंडिया में रहेगी, और उनको काफी मुस्तवत करना पड़ेगा टू रिवाइव बैक कांग्रेस पार्टी। एंड आई हैव गिवन एन इंस्टेंस फॉर ओडिशा कि लास्ट टाइम व्हेन ऑल 18 सीनियर लीडर्स फ्रॉम ओडिशा दिल्ली बुलाया गया, वी डिस्कस्ड विथ आवर लीडर्स। आफ्टर दैट एक पीसीसी प्रेसिडेंट जो हमें मिले, जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड थी कि कंसेक्यूटिव 6 इलेक्शन उन्होंने हार चुका था। एक हारे हुए लोगों को जो खुद जीत नहीं पा रहे हैं 5-6 इलेक्शन, उनको अगर पार्टी के कमान देते हैं तो क्या मैसेज जाएगा लोगों में। एंड वी लॉस्ट मिजरेबली, 13% वोट शेयर रहा हमारा, वी केट डाउन टू 13% वोट शेयर। दिस इज द एंग्विश, मेरा व्यथा मैं बता रहा हूं आपको कि हम लोग खून पसीना दे रहे हैं पार्टी में, और अगर डिसीजन पार्टी में ठीक नहीं होगा,
पार्टी अगर इस तरह बुरी तरह हार जाएगी और लाखों करोड़ों वर्कर्स जो पार्टी से जुड़े हैं सालों साल से, उनकी जो वेदना है, ये मैं जाहिर किया हूँ सोनिया जी को। मेरी पूरी उम्मीद है कि सोनिया जी ये लेटर पढ़ने के बाद उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी पार्टी के लिए, कभी उनके सामने वो पार्टी टूटते नहीं देखेंगे और ये इसके ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए। और अगर हम ये डिस्कशन के लिए मुंह नहीं खोलेंगे तो ये अगर नहीं हुआ तो आगे चल के अभी वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन है, पार्टी जिस स्टेज में खड़ी हुई है सबकी कमर टूट जाएगी। सर, जब आपने वो लेटर लिखा था आपने ये भी मेंशन किया है कि श्री राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात 3 साल में नहीं हो पाई है। अब एक ऐसे पार्टी में जी मैम, जब हम एमएलए थे लास्ट टाइम वी ट्राइड ए लॉट बट मुलाकात नहीं हो पाई। हमारे साथ सेकंड 9 लोगों का मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं हमें फील हुआ कि एक गैप हो जाता है लीडरशिप एंड लोगों के बीच में, वर्कर्स के बीच में, जो होना नहीं चाहिए। बिकॉज इंदिरा जी, राजीव जी, इवन सोनिया जी लोगों से मिल रहे थे। बट ऑफ लेट ये 4-5 साल से मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि एआईसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी का थोड़ा वर्कर्स से, लीडरों से, जो हमारे जैसे छोटे छोटे लीडर हैं छोटे छोटे स्टेट में, उनसे थोड़ा गैप हो जा रहा है। वही आपने सर ये भी लिखा है कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो 83 इयर्स ओल्ड हैं और इंडिया की जो यूथ की पॉपुलेशन है वो 65% है, वो 35 इयर्स ऑफ एज के बिलो है, तो वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। सो आपने बहुत सारे लोगों का नाम भी लिया है जो सेकेंड इन लाइन है, यंग लीडर्स लाइक ज्योतिराज सिंधिया, जयवीर शेरगिल, आपने बहुत सारे लोगों का मेंशन किया है। क्या आप चाहते हैं कि लीडरशिप चेंजेस हो कांग्रेस में, इसी वजह से क्या कांग्रेस की इतनी सारी सेटबैक्स हो रही है? जो लीडर्स अबव 80 इयर्स हो गए हैं, हमें उनको रेस्पेक्ट देना है, उनसे एडवाइस लेना है। बट एक्टिवली फील्ड में काम करने के लिए हम अगर यंगस्टर को सामने नहीं आएंगे जो दौड़ भाग कर पाएंगे, जो पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएंगे। मेरे को बिहार का इलेक्शंस बहुत छुआ है, दिल्ली का इलेक्शंस बहुत छुपा है। हेडक्वार्टर दिल्ली है, सब लीडर्स दिल्ली में रहते हैं और हम कंजिक्यूटिव 3 इलेक्शन में अपना इतना दिल्ली में शीला दीक्षित जी काम की थी, अनपैरेलल, मतलब आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे किसी से। उसके बाद अगर हम इलेक्शन में बिल्कुल खाता खोल नहीं पाएंगे, 0 सीट में सीमित हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सारे हिंदुस्तान के वर्कर्स को ये बहुत पेनफुल है। इसलिए कि हम ये सोच के सोनिया जी से चिट्ठी लिखे हैं। ये चिट्ठी तो हम सब सीडब्ल्यूसी मेंबर को भी दिए थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये चिट्ठी आपके पास आ गई होगी या कुछ मैसेज प्रेस में आ गया है, तो इसलिए हम खुल के बोल रहे हैं कि अभी की हालत, अभी का जो हालत है, इस पे पार्टी में एक रिवाइवल चाहिए। एक यंग ब्रिगेड को जिम्मेदारी देना चाहिए और जो फेस पार्टी के लीडरशिप लेंगे, जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट वगैरह, वहां पे एक प्रॉमिसिंग लोगों को लाना चाहिए जो इलेक्शन जीत सकते रहेंगे, जो इलेक्शन जिता सकते रहेंगे। ऐसे घिसे पिटे स्टाइल्स में अगर जाएंगे तो पार्टी आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। और सर, बिफोर आई लेट यू गो सर, फाइनल सवाल आपसे, आपने एक ओपन लेटर लिखा है जबकि आप एक मेंबर हैं इस पार्टी के। क्या आपको ऐसा लगा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग आपकी बातें, जो लीडर्स हैं, सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए आपको ओपन लेटर लिखना पड़ा? देखिए, ये लेटर ओपन नहीं था, ये लेटर हम सोनिया जी को दिए थे, कॉपी टू ऑल सीडब्ल्यूसी मेंबर्स एंड एआईसीसी प्रेसिडेंट एंड एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन। बट मुझे 2 दिन के नीचे कुछ प्रेस वाले ने पूछा तो मैं बोला हाँ ऐसे लेटर दिए हैं। तब ये डिस्कशन स्टार्ट हुई। लगता है जो मेल हम किए थे दिल्ली, कहीं ना कहीं ये प्रेस में आ गया है। जब आ गया है तो डिस्कशन भी होना चाहिए, चर्चा भी होना चाहिए और इसके ऊपर कोई कांग्रेस पार्टी सीरियसली लेके इसको आगे कार्य भी करना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।